Good morning, children. How are you all? I hope you all are good and your study is also going well. So, today I'm going to continue chapter 6, Blue Wednesday of your English literature. Yesterday I have already discussed the very first part of this chapter, and this is the second part of this chapter. So, now let's continue. Then she sat down on the window seat, leaning her head against the cool glass. She had been on her feet since 5 that morning, scalded and hurried via nervous matron. So, children, this is the story of a Wednesday, and this day, all the children of that orphanage had to work very hard. They had to sweep the rooms, they had to do many things on that day. So, that day, Zerusa did a lot of work, and after that, she sat down on the window seat and leaning her head against the cool glass. And children, she had been on her feet since 5 that morning. Means that day she had been working since 5 o'clock in the morning. And she was also scalded and hurried via nervous matron. That day she was scalded, she was in a hurry, means she did a lot of work on that day. And after that, she was also scalded by the matron of that orphanage. मीन्स उस दिन उसने बहुत सारा काम किया था, वो थक गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैट्रन ने, यानी कि वहाँ जो देखभाल करने वाली एक लेडी रहती है, उसने उसको डांटा भी था. इसके बाद वो एक विंडो सीट के पास में जाकर विंडो के पास में सीट पर बैठ गई. ओके. Mrs. Lippett, behind the scenes, did not always maintain that calm manner with which she faced an audience of trustees and lady visitors. Means that day, Mrs. Lippy did not do like other days. Means that day, her behavior was not rude as she always did. Means she was calm manner and with which she faced an audience of trustees and other visitors. The day had ended quite successfully as far as she knew. The trustees and the visiting committee had made their rounds and read their reports and drunk their tea and now were hurrying home to forget their bothersome little charges for another month. Means children, that day had ended quite successfully. Means उस दिन वाला जो वेडनेसडे था वो उनका सक्सेसफुली चला गया. ठीक है. एज फॉर एज शी न्यू, जैसा कि वो मिसेस लिपी को पता था, जैसा कि वो जानती थी. द ट्रस्टीज एंड द विजिटिंग कमिटी had made their rounds. Means that day the trustees and other visiting committees had to do their work and they came there. After that they went out. Okay, they went back and their reports and drunk their tea and now were hurrying home. Means they, when they came and they take their reports and drunk the tea and now were hurrying to home. Means just then, after taking tea and taking the reports, they went out. Means they just go back. Okay, to forget their bothersome. So children, what is the meaning of bothersome? Bothersome means causing difficulty. Little charges for another month. Means जब वो आए, अपना चाय पी, जो भी पीते थे वहाँ पे आके और रिपोर्ट्स ली, उसके बाद वो वापस चले गए. और ऐसे चले गए मानो कि कुछ उन्होंने ज़्यादा कुछ खास देखा वाला नहीं है और अगले मंथ के लिए फिर से कुछ ना कुछ छोड़ के चले गए हैं. ओके. जेरुशा अबाउट, यू आर वांटेड in the office and I think you had better hurry up. Tommy Dillon came shouting up the stairs. Zarusha wrenched herself from the window and asked, who wants me? Just then somebody came
and called Jerusha. Jerusha, Jerusha, you are being called by someone. Then she asks, who is calling me? Means who wants me? Jerusha asked, who is calling me? Means मुझे कौन बुला रहा है? और वहाँ पे टॉमी डिलन आता है, वो कहता है जेरुशा आपको कोई बुला रहा है. तब वो कहता है, जेरुशा कहती है कि मुझे कौन बुला रहा है? मिसिस लिपी in the office. Then he replied, Mrs. Lippy in the office. Means you are being called by Mrs. Lippy. वो कहता है आपको मिसेस लिपी ऑफिस में बुला रही हैं. Jerusha went down wondering what could have gone wrong. Were the sandwiches not thin enough? Were there shells in the nut cakes? Had a lady visitor seen the hole in Susie's Hawthorne's stocking? Means अब जेरुशा जब उसको बुलाया जाता है तो वो सोच रही पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई, मुझसे क्या मिस्टेक हो गई, क्या गलत हुआ है मेरे से. वर द सैंडविचेस नॉट थिन एनफ? क्या जो सैंडविचेस थे वो थिन नहीं थे? कहीं ऐसा तो नहीं है सैंडविचेस थिन ना हो. वर देयर शेल्स इन द नट केक्स? व्हाट इज द शेल? चिल्ड्रन, शेल्स मीन्स द आउटर कवरिंग लेयर ऑफ द नट. ओके, तो वो कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि केक्स नट केक्स के ऊपर शेल्स ना हो, मेरे से ये गलती हो गई हो. हैड अ लेडी विजिटर शीन द होल इन शूजीज हॉर्दन स्टॉकिंग? एक जो बच्चे वहाँ पे रहते हैं उसमें से एक बच्चे का नाम है शूजी हॉर्टन्स. ओके, तो वो कह रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि सूजी हॉर्टन जो है उसके स्टॉकिंग में किसी विजिटर ने होल देख लिया हो और जो मेरे से गलती से छूट गया हो. कहीं ऐसा तो नहीं है. ये सारी चीज़ें वो सोचते हुए चल देती है. ओके, the lower hall had not been lighted, and as she came downstairs, the last trustee stood at the open door that led outside. जब वो बाहर आती है, the lower hall had not been lighted. तो lower hall जो है नीचे वाला उसमें लाइट नहीं थी. And as she came downstairs, the last trustee, जब वो stairs से नीचे उतरते हुए आती है तो the last trustee stood at the open door that led outside. तो जो लास्ट ट्रस्टी था यानी वहाँ विजिटर जो आने वाला था, लास्ट जो वापस जा रहा था, वो कहाँ था? एट द ओपन डोर दैट लेड आउटसाइड, और बाहर की तरफ जाने को था. जेरुशा कॉट ओनली अ फ्लीटिंग इम्प्रेशन ऑफ द मैन. तो जेरुशा ने उसको पूरी तरह से नहीं देख पाई. जेरुशा सिर्फ एक छोटा सा इंप्रेशन देखा, उसकी एक छाया उसे दिखाई दी. एंड द इम्प्रेशन कंसिस्टेड एंटायरली ऑफ टॉलनेस. उसको देख, उसकी जो इम्प्रेशन थी, उसकी जो छाया थी, उसको देख के जेरुशा को ऐसा लगा कि ये कोई व्यक्ति जो है लास्ट ट्रस्टी वो काफ़ी लॉन्ग है, काफ़ी टॉल है. ओके, ही वॉज वेविंग हिज आर्म टुवर्ड्स एन ऑटोमोबाइल वेटिंग आउटसाइड. और जो ट्रस्टी जा रहा था वो क्या कर रहा था? ही वॉज वेविंग हिज आर्म, वह अपना हाथ हिला रहा था. टुवर्ड्स एन ऑटोमोबाइल वेटिंग आउटसाइड, ऐसे कि मानो बाहर कोई ऑटोमोबाइल खड़ा हुआ, यानी गाड़ी खड़ी हुई हो और उसकी तरफ हाथ हिला के वो अपना इशारा दे रहा हो. एट इट sprang into motion and approached the glaring headlights, threw the man's shadow sharply against the wall inside. और जो बाहर जो ऑटोमोबाइल खड़ा हुआ था उसका लाइट जब आता है, sprang into man's shadow sharply against the wall inside, तो उसका जो शैडो था वो बहुत तेज़ी से एकदम शार्पली यानी बहुत अच्छे से देख सकने वाला कहाँ के लगता है? वॉल इनसाइड, अंदर की वॉल पर यानी दीवार पर उसका जो शैडो था, आप जो देख रहे हैं ना, इस प्रकार से आके वो दिखाई देता है. द शैडो पिक्चर्ड डॉट्सक्यूली elongated legs and arms that run along the floor and up the wall of the corridor. द शैडो वर्ड पिक्चर्ड, उसका शैडो का यानी उसकी छाया का यानी परछाई का, शैडो बोलते हैं परछाई के लिए. ओके, तो उसकी जो परछाई थी उसको देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो बहुत अनप्लीजेंट हो, मतलब उसको देख के उसे बहुत अजीब लगा. उसकी जो लेग्स थी एंड आर्म्स थी दैट रन अलोंग द फ्लोर, वो फ्लोर से लेके, देखते हैं आप यहाँ देखिए, ये फ्लोर से लेके और ये यहाँ से वॉल स्टार्ट हो रही, तो वॉल तक था. यानी इतना बड़ा शैडो उसका दिखाई दे रहा था कि आर्म्स और उसके लेग्स यानी फ्लोर से लेके और वॉल तक थे. ओके, कहाँ? कॉरिडोर की वॉल और फर्श पर. ओके, इट लुक्ड लाइक अ ह्यूज वेवरिंग स्पाइडर
डैडी लॉन्ग लेग्स, और ये ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा सा स्पाइडर हो. ओके. जेरूशा's anxious frown changed to quick laughter. तो अचानक से आपको पता है जेरूशा जब ऊपर से डाउन स्टेयर्स पे उतर कर आ रही थी स्टेयर्स पे, तो उसे कुछ पता नहीं था, वो चिंतित थी, पता नहीं क्या हुआ है, मेरे से क्या गलती हुई है. तो उसकी जो चिंता थी वो चेंज हो गई और वो अचानक से हंसने लगी. ओके. शी एडवांस्ड टू द ऑफिस एंड प्रेजेंटेड अ स्माइलिंग फेस टू मिसेस लिपी. और वो पहुंचने के बाद में मिसेस लिपी के पास में पहुंचने के बाद एक अच्छी सी स्माइल उसने वहाँ पे जो है प्रेजेंट की, एक अच्छी स्माइल चेहरे पे लाके और वो वहाँ पे प्रेजेंट हुई. ओके. टू हर सरप्राइज द मैट्रन वॉज ऑल्सो इफ नॉट एग्जैक्टली स्माइलिंग एट लीस्ट एप्रिसिएवली प्लीजेंट. लेकिन उसके सरप्राइज के लिए जो मैट्रन थी वो वॉज ऑल्सो इफ नॉट एग्जैक्टली स्माइलिंग, पूरी तरह से हंस तो नहीं रही थी, स्माइल तो नहीं कर रही थी, बट फिर भी वो थोड़ा सा प्लीजेंट सेंस में उसने उसको रिप्लाई दिया. ओके. शी वो एन एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट एज प्लीजेंट एज द वन शी डन फॉर विजिटर्स. उसने ऐसा एक्सप्रेशन शो किया मिसेस लिपिड ने जैसा कि उसने एज द वन शी डन फॉर विजिटर, जैसा कि वो जब विजिटर आते हैं तो कोई विजिटर उसके पास मिलने के लिए आता है तो वो एक्सप्रेशन जैसा शो करती थी वैसा ही एक्सप्रेशन उसने तब शो किया. ओके. सिट डाउन जेरूशा, आई हैव समथिंग टू से टू यू. नाउ मिसेस लिपी इज नाउ सेइंग टू जेरूशा, लिसन, सिट डाउन जेरूशा, आई हैव समथिंग टू से टू यू मीन्स मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज सिट डाउन. ओके.